कैट का क्यूए सेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रहा है। आप शायद मॉक लिख रहे हैं मगर उसमें क्यूए में ठीक से नंबर नहीं आ रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि यार कैट का नोटिफिकेशन भी आ गया, आज अब ये क्यूए का क्या करा जाए। वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी simplified strategy for QA 99, how to get a 99 percentile in QA or how to get a great percentile in QA in CAT so that you can get into your dream B school. In this video, I'll not only be speaking about the preparation strategy कि आपको prepare करना चाहिए कैसे, बल्कि also the attempt strategy for QA in your mocks, in your CAT so that you can ace it completely. In fact, even if you're somebody who thinks you're very weak in QA, this video is going to blow your mind because towards the end I'll be giving you, if you are weak in QA, अगर तुम्हारी QA में बिल्कुल खत्म हालत है तब भी तुम एक 90s में परसेंटाइल कैसे ला सकते हो, बहुत रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल ला के अपने आप को बचा कैसे सकते हो, ये भी इस वीडियो में है। दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच ऑन QA. आई एम दर्पण सक्सेना, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. आइए फटाफट चलते हैं, देखते हैं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई करनी चाहिए और क्या क्या करनी चाहिए ताकि आपके लिए QA एक बेहद आसान चीज बन जाए। पहली चीज, यू आर वॉचिंग द पार्ट 4 ऑफ माई वीडियो सीरीज इन विच द फर्स्ट 3 parts are already live on my YouTube channel for DILR, VARC and an overall 99 percentile strategy, and now you're watching the QA strategy of it. Also, I had made a video on the CAT timetable, so if that is something which you'd want to see, watch that. Now, understanding first thing, basic broad overview. मैं हमेशा अपनी वीडियोस की शुरुआत whether it's DILR, QA और whatever एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू से करता हूं कि भाई ओवरऑल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है। कैट एग्जाम समझना होगा। हेलो, इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैट यू विल बी इन अ मेस, बिकॉज इसके आगे इसमें से बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स लेके मैं आऊंगा QA के अंदर। देखो टोटल क्या है चीज, 66 क्वेश्चंस आते हैं इन द ओवरऑल कैट एंड बिकॉज +3 फॉर ईच राइट आंसर, देयरफॉर यू हैव 198 एज द टोटल स्कोर। हियर इज द ओवरऑल, दिस इज द ओवरऑल कैट का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। आई हैव शेयर्ड विद यू दैट in CAT 2023, which is the latest CAT which has happened, how much score did you require for an overall 99.9 percentile in CAT? How much score you required in 99.5, so on and so forth. You can see this. अगर आपको एक 99 percentile लानी थी in CAT, all you had to do was to get a score of 76 out of 198, which effectively means that a net correct of 25 questions, because 25 into 3 is going to give you approximately 75, 76. That is the thing. Also, for the sake of completeness, I have given you the same data for CAT 22 and 21 so that you can see the full view of it. आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, मगर इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू होती है। देखें जरा ये, इफ यू हैव टू सिंप्लीफाई योर स्ट्रेटेजी, प्लीज डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ द परसेंटाइल्स। आप अपना, हेलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना दिमाग खराब कर लेंगे एज अ स्टूडेंट, स्पेशली अगर आप एक फर्स्ट टाइमर हैं। इफ यू आर अ फर्स्ट timer in CAT, if this is your first attempt in CAT, you will mess up your brain if you keep on thinking about, oh my god, I have to score a 99 percentile, oh my god, I have to score a 99.9 percentile. If you think like that, you'll mess it up. Here is how you need to think. Therefore, the title of the video was simplify your strategy. आगे और भी crazy simplification है जो कि काम आएगा। यार देखो सीधी सी बात है, 99.9 percentile को अगर ब्रेक डाउन करें तो यार आपको 54% मार्क्स लेके आने थे, 54% मार्क्स। सेम वे अगर आपको 99.5 percentile, which for a lot of you would be a dream, therefore you had to score only 85 marks out of 198, which is 43% of the marks percentage. And अगर आपको 99, the dream 99 percentile लेके आनी है, which is going to unlock the doors for a lot of good B schools for you, all you had to do was to score a 38%, which is 76 marks. My dear friends, the problem with us is because all through our schooling we have thought like कि यार बोर्ड में तो कम से कम we have to score a 85% or a 90 and this and that. In CAT we suddenly come and we can't believe it that if we just get a 38% in the CAT exam, हमारे घर में मिठाइयां बट जाएंगी। जहां पे अगर 38% अगर आपके स्कूल में आ रहे होते, आप डिप्रेशन में आ जाते कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू स्कोर वेल एंड दिस एंड दैट, मुझे समझ नहीं आ रहा। CAT में 38% लाके आपकी मौज हो जाएगी। ये वाली चीज है, बेसिक चीज पहले आपको समझने वाली है, which effectively means what? The question which you need to ask yourself right now when you're watching this, I am recording this in July, but you could be watching this whenever you want to. The question which you need to ask yourself is that, hello, can I get 36 questions correct
in the next few months. 36, why? Because 36, if you see the first row, 36 correct questions करके आप 99.9 percentile ला पा रहे हैं. या फिर मान लीजिए if your aspiration is not that high, can you ask yourself, hey, can I get 29 questions right overall, or can I get 25 questions right? Whichever is your target overall percentile, can you simply write this down on the paper कि हेलो क्या मैं इतने questions correct कर सकता हूँ कि नहीं? एंड ये questions मुझे QA, VARC, DILR तीनों में से निकालने हैं. अब प्लीज डोंट स्टार्ट कमेंटिंग कि अरे आपको कैसे पता कैट 24 और 25 में भी 29 क्वेश्चंस पे ही इतनी परसेंटाइल आएगी. 20 मुझे नहीं पता, बट इसीलिए मैंने आपको 3 ईयर का बैकग्राउंड दिया था. बिकॉज इफ यू गो बैक टू दैट यू विल रियलाइज ऑल अक्रॉस दोस 3 इयर्स सिमिलर स्कोर्स पे ही आई है. अगर आप सबसे फर्स्ट रो में जाएं तो 107, 110 एंड 120 रेंज इज सिमिलर एंड ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस होंगे, बट द पॉइंट इज वॉच इट इन टर्म्स ऑफ द स्कोर्स. नाउ दैट यू नो द ओवरऑल पिक्चर, नाउ दैट यू नो दैट ओवरऑल रिक्वायरमेंट स्कोर वाली क्या, अब चलते हैं थोड़ा क्यूए में कि भैया 36 क्वेश्चन अगर ओवरऑल या फिर 25 क्वेश्चंस निकालने हैं ओवरऑल, उसमें से क्यूए में हमें क्या गेम खेलना है ताकि क्यूए में अच्छा परसेंटाइल आ जाए. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन इन क्वेश्चन व्हिच इज क्यूए, द क्यूए सेक्शन ऑफ कैट. क्यूए सेक्शन हैज 22 questions and the total score therefore is 22 into 3 which is 66. This is what the expected structure of CAT 24 is going to be also. This is that. Now for the sake of clarity I have put the data, the same percentile versus score data for CAT 23. Also I chose to put the same for 2021 ताकि थोड़ी space रहे and you can see the full spectrum of it from 21 to 23. What you will realize is that a 99.9 percentile in both the years required a score of 48. A 99 percentile row 2 required a score of 30 in CAT 23 and so on and so forth. For each sectional percentile in QA you can see the scores which are required and the number of questions you need to get solved correctly for you to get that. Is this clear? Now once this is clear, here is what you need to know, that if you were aiming to get 25 questions right overall broadly, अगर आप यहाँ से 6 या 8 सवाल या 10 सवाल भी सही करके ले आते हैं, एक तो ओवरऑल टारगेट अचीव कर रहे हैं आप, एंड मोर ओवर यू आर एबल टू गेट अ वेरी रिस्पेक्टेबल 95 और 99 परसेंटाइल इन क्यूए. हेलो, सो इफेक्टिवली इफ योर प्रॉब्लम वाज क्यूए दैट ओ माय गॉड हाउ डू आई गेट अ 90s में भी परसेंटाइल आ पाएगी क्या मेरी क्यूए में, मेरी क्यूए बहुत वीक है भाई. हेलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई शुड हैव सेड दिस इन द स्टार्ट, मेरी भी क्यूए वीक थी. माय वीकेस्ट सेक्शन वाज क्यूए ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर. दिस इज फनी बट यू नो ये है एक फैक्ट. नाउ माय क्वेश्चन इज भाई, forget seeing QA as a 99 percentile game or as a 95 वाला game, this and that. Can you see it simply as 8 questions, 10 questions, 6 questions? क्या मैं अगले कुछ महीने में QA में 8 questions सही करके आ सकता हूँ कि नहीं? That is the question you need to ask. Please write this down somewhere. Hello, because the next thing now which I'll be taking you through is the preparation plan. Preparation plan क्या है? बड़ा simplified plan है, बहुत simplified है, मगर completeness feel करोगे अंदर से कि वायर मजा आ गया. Totally. My question is, please write it down somewhere and promise yourself. Hello, write it down in the comments. Give it to me in the comments. Yes, I'm sure I can get 8 questions right or 10 questions right out of 22 questions in QA. My only objective is to get this many questions right in the next few months. महीने हैं तुम्हारे पास. That is the feeling you should be moving ahead with. That's that. Now let me take you through, my dear friends, that what should be the preparation plan. How can we simplify it? QA में weak हो, if you're feeling weak in QA in CAT, then here is the preparation plan for QA. A simple thing. See, any preparation, be it for QA, DILR, VARC, CAT की जो प्रेपरेशन है उसमें 2 हिस्से हैं. वन इज द मैच प्रैक्टिस एंड वन इज द नेट प्रैक्टिस. दिस इज बेसिकली द टर्म्स ऑफ क्रिकेट. मैच प्रैक्टिस मतलब मॉक टेकिंग, मॉक मतलब एक्चुअल 2 आवर का मॉक लिया मैंने और देखा क्या है. मैच प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या आ गया, मॉक्स ले लिए, फुल लेंथ 2 आवर मॉक्स. और बिकॉज इफ यू आर फीलिंग वीक इन क्यूए देन सेक्शनल टेस्ट ले लिया ऑफ क्यूए. दैट इज दैट, बिकॉज सेक्शनल विल बी फॉर 40 minutes and obviously it includes analysis of both all the mocks you take and all the sectionals you take. Analysis is a must. Without analysis it is no point. What is analysis? Simplified way, solve all the questions again, whether the ones you've solved correctly, whether the ones you've not been able to solve, सब करो and देखो जो solve नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, और जो solve हुए उसमें कोई shorter trick है, और जो solve हुए और गलत हो गए वो क्यों गलत हो. सिंपल सी बात है, मैंने बहुत फटाफट से आपको analysis क्या होता है कर दिया एक्सप्लेन. दूसरी चीज है net practice, because a student would say that sir but mock लिखने से पहले थोड़ी net practice करनी चाहिए
चाहिए ना सर, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करे जाएं, क्या करे जाएं। हेलो, अगर आपके दिमाग में अभी तक सवाल ये थे कि सर क्वांट की अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, वो कैट का आज अखबार में मतलब वो नोटिफिकेशन आ गया और अब हर जगह बात चल रही है कैट कैट कैट, माय फैमिली सेइंग कैट करो सीरियसली। सर प्रिपरेशन कैसे की जाए, नेट प्रैक्टिस कहाँ से क्वेश्चन करे जाए। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू। हेलो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि यार प्रिपरेशन क्यूए की प्रिपरेशन आउटसाइड मॉक्स क्या करनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू वॉच। हियर इट इज। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट नेट प्रैक्टिस आउटसाइड ऑफ मॉक प्रैक्टिस फॉर क्यूए क्या है ब्रॉडली। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हेलो, why is it that, see, this is the question to the students, to you, why do you stress so much on completing the syllabus? Why is it that you say कि सर जब तक syllabus complete नहीं होगा तब तक mock test कैसे लिखे जाएं, क्या लिखे जाएं? I have the answer for this because I've been in this industry for 10 years now. I know the answer. See, what I discovered that why you or why any student wants to first complete the QA के कहीं से कुछ solve कर ले is because that gives you a sense of completion. तुम्हें लगता है कि अब मैंने सिलेबस कर लिया पूरा, अब जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा या जाऊंगी आई फील गुड, बिकॉज ये हमें हैबिट है फ्रॉम द स्कूल डेज, दैट्स दैट ऑब्वियसली। देन दैट गिव्स यू द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट नाउ बिकॉज आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम, नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैंने सब कुछ देख लिया, नाउ आई कैन डू, एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू अ फील गुड। ऑल ऑफ दिस प्रेप एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हाउ गुड यू फील। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैट में सबसे ज्यादा नंबर वो लाएगा जो उस दिन अच्छा फील कर रहा होगा। तो इफ टू ऑफ यू आर विद द सेम level of prep, but if one of them is feeling very good about themselves and their prep and is not feeling the stress of the cat and all of those things, you will do much better. The one who's not feeling the stress, ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर एक वीडियो चाहिए, that mindset to cat crack क्या होना चाहिए, because I've mentored students for the last 10 years, it's not just my experience, it's a collective experience of thousands of students I'm speaking from, then go and hit the like and also let me know in the comments. That's that. Now my dear friends, here is a simple preparation plan. तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, सेंस ऑफ कंप्लीशन करनी है तुम्हें। यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट क्यूए। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि सॉल्व नहीं हो रहे, सिंपल सी चीज है, देखो 4 मेन एरियाज हैं क्यूए के, 4 मेन एरियाज हैं जिसमें सारा तुम्हारा क्वांट का पेपर आ रहा है, विच इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। प्लीज मुझे मॉडर्न मैथ मत कहना कि वो है, मुझे पता है, अभी मैं मेन एरियाज की बात कर रहा हूं। मैं अभी तुम्हारी स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात करता हूं। आई हैव एन अर्ज, आई हैव अ एडवाइस। देखो क्या करना चाहिए, कोई भी पिक एनी बुक, एनी, एंड वील स्पीक अबाउट क्या ऐसी बुक, क्या बुक, वो भी आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा उसमें। हर किताब के पीछे L1, L2 और L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके सवाल दिए हो। माई सिंपल सबमिशन टू यू इज प्लीज सॉल्व 50-50-50 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स एंड दिस एंड दैट। 50-50 क्वेश्चन हर लेवल के हर टॉपिक के कर लीजिए, विच मीन्स इफेक्टिवली यू आर सॉल्विंग 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक, विच इफेक्टिवली मीन्स you are solving 600 questions. Now you would ask कि बट सर ये questions कहाँ से, which book you would advise this and that। देखो simple 2 advice हैं। बेस्ट रहेगा किसी भी कैट कोचिंग की स्टडी बुक्स जो होते हैं वो ले लो, that is the best. See, कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रेपरेशन करने के फायदे बहुत हैं, because that would give you structured prep. I would not go out and say that do free this thing, free कर लो prep, because उसमें मैंने कुछ दे दिया है, नीचे तुम जाके you can check it. नहीं, if you are ready to invest lakhs in your MBA, be ready to spend a few on your CAT coaching so that you can crack it in one attempt. That is more important. वरना साल दर साल ये पागलपन हो जाएगा कि हाय उसी साल मैंने कर लिया। ऐसे मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर फर्स्ट ईयर हमने सेल्फ प्रेप कर लिया था तो सर ज्यादा नंबर नहीं है, यहाँ तक आ गए। मैं कहता अगर कर लिया होता शायद आगे भी आ जाते नंबर। एनीवेज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट या तो किसी कोचिंग को ले लेना या फिर कोई भी फेमस बुक ले लेना। फॉर एग्जाम्पल द बुक बाय अरुण शर्मा जी इज अ वेरी फेमस बुक, इट्स अ फेमस बुक। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग, I am not saying कि his book is the best this and that, but it's a famous book. It seems to be a good book. I have seen it also. It is a good book. This is not affiliated. अगर होता तो यहाँ होता check the link in my description. Use the code --10 to get that book. No, it's a humble advice कि ये भी एक अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। Broadly मैं आपको कह रहा हूँ, आपका गेम है 50-50-50 each across 4 sections, which means overall 600 questions. Your preparation, my dear friends, in QA is a 100
hour preparation. Simple. In my last video, which was on CAT timetable, I had said the same thing. Watch that if you have not. That see your QA का prep, outside mock prep as 100 hours only. कहता 100 hours, how? 600 questions, and I'm assuming per questions you will be spending 10 minutes. 10 minutes? आप कहोगे बट सर CAT में एक सवाल तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना पड़ता है, तो आप 10 मिनट्स का assumption क्यों लेके चल रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया. That you will read the question, you will solve it, then you will not be able to solve it, then you will go back and you will see the answer, then you will see how to solve it, then probably you will solve it again. मैंने सब कुछ assume कर लिया है because this is your outside mock वाला thing that you might take 10 minutes for each question and 600, therefore 6000 hours, which means 6000 this thing, which means 100 hours. Simplify कर दिया कि नहीं कर दिया? My objective is, my dear friends, that do not go by when others say to you that अरे एक किताब के पीछे जितने सवाल हैं उसको लिख लीजिए एक एक्सेल में and you have to solve all questions. नहीं करने. If that is what people are advising you and very famous people are advising this, then where is their academic prescription? As academicians we need to prescribe कि नहीं भैया सारे 700 800 1000 सवाल नहीं करने, थोड़े सवाल करो, आगे बढ़ो, मॉक पे चलो, बिकॉज तुम्हें चाहिए भी सिर्फ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस. माय डियर फ्रेंड्स, ये 600 क्वेश्चन करके तुम्हें हर तुम्हें क्वांट का कोना कोना समझ आ जाएगा कि यार इस किस्म के सवाल होते हैं. इस 600 के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, जो किसी किताब के पीछे के सवाल हैं या फिर अगर लास्ट ईयर के कोई सवाल आए हुए हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड है. माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज योर प्रिपरेशन प्लान. नाउ मूविंग ऑन, नेट प्रैक्टिस, mock taking strategy, which effectively means what should be your test taking strategy for QA. This is very interesting, my dear friends. इस सेक्शन में अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ आएगी. वो पता है क्या? कि अगर आप बेहद कमजोर हैं, बुरी हालत है अगर QA में आप, फिर भी आप 90 परसेंटाइल ला सकते हैं QA में. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. आई एम गोइंग टू प्रूव दिस इन दिस वीडियो. आपकी बुरी हालत चल रही है, QA में नंबर नहीं आ रहे, ये वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा कि टाइम क्लैरिटी एक चीज होती है. बच्चों को टाइम क्लैरिटी नहीं है और कोई फैकल्टी, कोई एजुकेटर, एटलीस्ट द वंस व्हिच आई हैव सीन हियर, आर नॉट इवन स्पीकिंग इनफ अबाउट टाइम क्लैरिटी, बिकॉज द बेसिक स्ट्रैटेजी इज टाइम क्लैरिटी. समय तो जो है वो है, सिर्फ उतना. मूविंग ऑन, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, सिंपल सी बात है. जैसे ही QA का सेक्शन आए, पहली चीज करनी है, ऊपर दिया होता है क्वेश्चन पेपर मोड. क्लिक दैट एंड द एंटायर क्वेश्चन पेपर विल कम टू यू एज स्क्रॉलेबल. वरना क्या होगा? वरना फॉर यू टू वॉच एंड सी ऑल द सवाल, यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट एंड देन बैक. नो, यू नीड टू read all the questions in one glance. That is the thing. Why is it that? Because so that you can decide which questions you need to attempt in the round number 1, which questions you need to attempt in round number 2. Yes, in QA there is only one strategy that works. There is only one strategy, which is round wise strategy. This strategy was made famous by GP from Career Launcher. When I was a student, when I was an MBA aspirant, I learned it from him. So it is his original strategy where it started from, and now everyone swears by it, and so should they, because this is the only way you can do really well in QA, and that is what my advice is to you. Basically what I'm saying is that this is your structure going to be. Your QA section is for 40 का होता है in terms of the duration. I'm saying in the first 2 minutes of it, all you have to do is open the question paper mode and skim through it and make a list of the questions which you will be solving in round 1. Round 1 के questions कौन से हैं? राउंड 1 के क्वेश्चंस है हरे क्वेश्चंस. हरे मतलब व्हाट? विच यू नो, यार देख के ही समझ आ रहा है दैट आइदर दीज आर फ्रॉम माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, की हाँ यार यू नो यार अलजेब्रा मेरा ना एक स्ट्रेंथ है, उसके सवाल आएंगे मैं फोड़ दूंगा टाइप्स. आपको ये लग रहा है ये तो एकदम आसान है, बहुत आसान है. जितने भी हैं राउंड 1 के, चाहे आपके 8 सवाल दिख रहे हैं, आपको 6 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, 12 दिख रहे हैं, 15 दिख रहे हैं, आपको नोट कर लेने कि ओके सवाल नंबर ये करना है. दैट इज दैट. दिस ऑल ऑफ दिस हैज टू बी इन योर प्लान फेज. वंस योर round 1, which I am advising should be the next 25 minutes. Once you solve all the questions of round 1, then you will go back and see अच्छा round 2 के सवाल कौन से हैं, because round 2 के सवाल भी you have to spot in the first this thing itself. So basically when you are skimming through the paper, spot the questions of round 1 and round 2. Also spot the questions which you would leave entirely. You have to leave questions. You cannot solve all. वैसे भी solve नहीं करने. Hello, table you had seen at the starting. Even the ones who are scoring 100 percentile are not solving all the
questions. Why do you have to solve it if you are weak? That is the thing. Now my dear friends, अब आता है interesting चीज, very interesting चीज, that how you will be able to score whatever percentile you want irrespective of who you are. Let me talk about who are the ones who score the 100 percentiles and the 99.9 percentiles in QA. वो लोग होते हैं कौन, and उनकी attempt strategy क्या होती है, what is the science behind scoring that. I am actually sharing you the bare bones science of that. See, understand this. A topper in QA is basically उसके round 1 के जो सवाल होंगे, because he is, because he or she is exceptional in QA, he or she for sure is able to solve their round 1 questions in not more than 2 minutes per question. That is why they are round 1 questions, because they are easy for them. हो सकता है they might solve it in much shorter duration as well, but I'm saying at max 2 minutes per question. Now because the prescribed round 1 समय is 25 minutes, that means that a topper will be able to solve 12 questions in round 1. ठीक है, and I am assuming because they are a topper, they are a rock star in QA, their accuracy with respect to round 1 questions, because round 1 उसके strength के question है is 100%, कि जी वो exceptional है. round 1 के question जो easiest question है वो तो वो सभी सही कर देगा, because quant is absolute science. जो आंसर आ गया वो आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है. like a VA and RC केयर क्या हो सकता है क्या, which means what, उसके round 1 में you as a topper have already secured 36 marks in QA in round 1, and then I would assume that the round 2 में the human being, the topper would take 3 minutes per question, and because round 2 is for 13 minutes, they will be able to solve 4 questions again at 100% accuracy, because again they are exceptional in QA. So once they solve something, they will solve it correctly. Once you solve something, you will solve it right. बस ये है कि your speed might be slower because it's a much more complex question for you. My dear friends, with this assumption, the topper, you would get 12 marks in your round 2. Effectively you get 48 marks, which my dear friends, if you pause and look back in the initial thing I showed you, that is equal to 99.9 percentile in both CAT 23 and 21. My dear friends, this is the structure how a topper gets a 99.9 or 100 percentile in QA. ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर समझ आया लिख दो नीचे जाके कि what do you feel about this. This is important because now I'll come to you and talk that if you're somebody who's above average or weak in QA, then what should be the time clarity you should be operating with. जरूरी है, एक बार मैं समझा दूंगा, ऐसा समझ आएगा कि हर मॉक में दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि यार इतना समय मेरे पास ये खेलना है. अब आ जाओ to somebody who's above average in QA. I am saying चलो you're above average even in round 1. You might be able to solve a question not in 2 but in 2.5 minutes, which means because round 1 has 25, you'll be able to solve 10 questions in round 1. And I'm further assuming कि because you are just average above average, your accuracy is going to be somewhere around 90%. मतलब अगर 10 सवाल करे अटेम्प्ट तो 9 सवाल ही सही होंगे. इफेक्टिवली राउंड 1 में आपका कितना स्कोर बना, 26 बना. कैसे? आपके 9 सही हैं तो 9 into 3 is 27 और एक रॉन्ग हो गया तो 26 हो गया. ठीक है, 26 आपने राउंड 1 में सिक्योर कर लिया. हेलो अबव एवरेज स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दे दो यहाँ पे, अभी बहुत जरूरी है. अबव एवरेज और फिर जो है वीक. अगेन यहाँ पे आपके पास राउंड 1 में ही भाई 26 मार्क्स आ गए, क्या चाहिए और आगे सुनो क्या चाहिए. अब आप आते हो अपने राउंड नंबर 2 में. आई एम सेइंग यू टेक 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, बिकॉज आइडियली 3 मिनट पर क्वेश्चन से ज्यादा क्या लोगे, अगर एवरेज भी हो क्वांट में कितना ले लोगे. मगर हाँ, आई नो बिकॉज योर एवरेज, योर accuracy might get very low. So I am saying your accuracy in quant, which is anyways very absolute, might drop to as low as 75. बिल्कुल मैंने जो लिए assumptions ना, they are very मतलब chilled out assumptions. कोई मुझे आके ये cannot say कि just because you wanted to prove your point आपने तो बड़े strict assumptions ले लिए कि देखो QA कितना आसान है. नहीं भैया, 75% लिया है मैंने, बहुत कम लिया. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ because 3 minutes पर क्वेश्चन है तो because तुम्हारे पास राउंड 2 में समय था, you could have solved 4 questions, but because you solved 4, उसमें से 75 ही हुए ठीक, therefore 3 तुम्हारे हैं सही एंड एक हो गया रॉन्ग, which means क्या है, स्कोर तुम्हारा 8, बिकॉज 3 हो गए सही 9 एंड एक कम 8. My dear friends, if you're above average in QA, you can score a 34 marks, which my dear friends is 99 percentile in QA. Can you believe it? Hello, above average हूँ मैं, 99 percentile QA में ला सकता. क्या बोल रहे हो? एक सेकंड क्या बोल रहे हो, दोबारा दिखाओ जरा. हाँ ये देखो, स्क्रीनशॉट कर लो इसको, जरूरी है. और अगर नहीं समझ आया देख लेना, दोबारा
जाके स्प्रेड दिस वीडियो। सी हेलो अगेन, इवन इफ यू आर एन एजुकेटर, यू आर अ सीनियर, आइडियली इसको स्प्रेड कर दीजिए। ऑल्दो ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट द सेम वीडियो ऑन योर मतलब लाइक चैनल, यू कैन डू, बहुत कर भी रहे हैं, वो देख भी रहा हूं मैं क्या चल रहा है, मैं बनाता हूँ सेम बना देते, कोई बात नहीं, करिए। अगर आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं ये भी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इट कैन हेल्प यू। ऑल्सो प्लीज डू नॉट forget to subscribe to the channel, hit the notification so that whenever I post the next video you get notified, because a lot of interesting videos, not just about cat but everything else, are about to come. Allow me to now quickly take you through। भाई अगर वीक हो, बिल्कुल वीक हो क्यूए में, तब कैसे करोगे? अब यहाँ पे बहुत लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई वीक है तो क्या करें। ये है भाई, देखो वीक हो तो भाई है, मैं कह रहा हूँ तुम वीक हो, मैं कहता हूँ तुम राउंड 2 में भी एक सवाल करते हो 3 मिनट में, तुम्हें एक सवाल करने में लग जाते हैं 3 मिनट, तो देयरफॉर you will be able to solve only 8 questions, okay? And I'm saying your accuracy even in round 1, which were supposed to be the simplest questions, which you think are the simplest ones, I'm saying उसमें भी तुम्हारी बहुत ही खराब है accuracy of 80%. My dear friends, that means somewhere you will score 16 marks, ठीक है? ये चीज तुम्हें समझ आ गया, 16 ही तुम्हारा होगा स्कोर, तो राउंड 1 में तुम 16 स्कोर ले आए। अब मैं कह रहा हूँ राउंड 2 में, अब यहाँ देखो, इतना इससे ज्यादा चिल्ड आउट अजम्पशन नहीं ले सकता मैं कह रहा हूँ तुम इतने खराब हो क्यूए में, इतने खराब हो, तुम 5 मिनट पर क्वेश्चन ले रहे हो, 5 मिनट, विच इज हॉरिबल। तुम अगर कैट डे पे 5 मिनट पर क्वेश्चन लेके चल रहे हो ना, तो तुम भाई कैट के लिए नहीं बने, लाइक सॉरी टू से बट इट्स अ फैक्ट। तुम 5 मिनट पर क्वेश्चन लेके तुम भैया, और मैं एक और कर दिया अजम्पशन, योर एक्यूरेसी इज 50%, मतलब 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, बट 50 है तो उसमें से एक तुम्हारा हो गया रॉन्ग, एक हो गया सही, विच मींस तुम्हारा कितना हुआ स्कोर? 2 नंबर लाए तुमने। राउंड 2 में लाए सिर्फ नंबर 2, टोटल नंबर कितने बने भाई? 18। हेलो, गो बैक एंड लुक एट द टेबल माय डियर फ्रेंड्स। अगर तुम वीक भी हो, खत्म हालत है क्यूए में, तुम 90 परसेंटाइल लाके अपनी ओवरऑल परसेंटाइल सेव कर सकते हो। क्या ये समझ आ रही है तुम्हें? तो इफ यू आर फीलिंग स्कैर्ड अबाउट समथिंग कि यार 1 सेकंड क्यूए वीक है, मेरी तो ओवरऑल परसेंटाइल खराब हो जाएगी, और क्यूए में अगर सेक्शनल परसेंटाइल क्रॉस नहीं हुई तो किसी आईएम का कॉल नहीं आएगा, क्या करूं? आई हैव गिवन यू द आंसर फॉर दैट, कि आप गिरी से गिरी हालत में क्यूए में 90 परसेंटाइल तो ला सकते, इससे खराब हालत तो नहीं हो सकता। 5 मिनट पर क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द क्लैरिटी व्हिच आई वांटेड टू गिव यू। नाउ क्विकली, फॉर द sake of completion, I want to give you some common problems which you will be facing, which students face, so that I can I can make you very rock solid about it already. 3 problem. Suppose somebody would come and say that sir, I am weak in arithmetic, and I am using arithmetic only as an example. It could be anything else, but चलो ठीक है, here I am saying sir, I am weak in arithmetic. Suppose, what is the core problem? हेलो, ये तो तुमने बस एक मतलब सिम्टम बोल दिया आगे कि जी I am weak in arithmetic. इसकी कोर प्रॉब्लम क्या है? कोर प्रॉब्लम ये है भाई, कोर प्रॉब्लम ये है, शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर मेरी कैलकुलेशंस लो हैं और मैं अप्रोक्सीमेशंस करना नहीं आता है ठीक से, बिकॉज अरिथमेटिक में 2 चीजें जरूरी हैं, कैलकुलेशंस फास्ट होना और अप्रोक्सीमेशंस का सही इस्तेमाल होना। देयरफॉर अगर अरिथमेटिक वीक समझते हो तो शायद प्रॉब्लम ये है, मगर एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अरिथमेटिक वीक है तो या तो ये प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन में वीक हो, अप्रोक्स नहीं कर पाते वो, या फिर एक और प्रॉब्लम हो सकती है दैट यू नो व्हाट, आई डोंट नो द स्ट्रेंथ्स व्हिच आई हैव विद इन अरिथमेटिक एंड आई हैव जस्ट सेड कि अरिथमेटिक ओवरऑल इज अ बैड थिंग फॉर मी। भाई हेलो, you need to remember that arithmetic has so many topics inside of it, ratios and proportions, percentages, time and work, TSD, कितने topics हैं उसी के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता सारे तुम्हारे वो हैं, नहीं। therefore the mindset needs to change कि हाँ यार, arithmetic में से कुछ chapters मेरे weak हैं, कुछ मेरे को समझ, like for example for me time and work weakness, ultimate weakness for me, बहुत weak था मैं टाइम वर्क में, शायद आज भी हूँ। that's so I will not say कि अरे मेरा arithmetic वो है weak, नहीं, it is a articulation problem, you are not articulating your problem in the right manner. Maybe then second problem you are having is that चलो मान लो you are much more aware because you are my student and you know कि सर आप सही कह रहे हो, सब में प्रॉब्लम नहीं, एक में कि सर आई एम वीक इन अ पर्टिकुलर टॉपिक विद इन अरिथमेटिक। यू नो, एक चीज पूछना अपने आप को कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी एक टॉपिक में वीक हूँ, हो सकता है आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं लेवल 2 और लेवल 3 के सवाल जो आते हैं ना उसमें वो नहीं कर पाता हूँ, लेवल 1 मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी टॉपिक में अगर वीक हो तो अपने आप को ये कहना मत शुरू कर देना कि मैं वीक हूँ, और जब कैट में वो टॉपिक आए तो बिना सवाल देखे उस टॉपिक को छोड़ दिया कि तो उस टॉपिक का हो सकता है योर वीकनेस इज लिमिटेड टू लेवल 2 एंड लेवल 3 क्वेश्चंस। हो सकता है लेवल 1 क्वेश्चंस तो तुम इजीली टेक केयर कर पाओ, विच इज ऑल्सो अ प्रिस्क्रिप्शन टू यू। किसी तुम्हें इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे पहुंचना है कि तुम किसी भी टॉपिक के लेवल 1 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाओ। लेवल 1 की क्लैरिटी ले आओगे तुम्हारी 99 ओवरऑल तो वैसे ही आ जाएगी। दैट्स द फैक्ट। सो आई होप योर माइंड इज ओपनिंग अप टू इट कि ओ माय गॉड, क्या मैं लेवल 1 कर पा रहा हूँ? लेवल 1 कर पा रहा हूँ तो वीकनेस थोड़ी ना यार, तो ये है बस कि ठीक है एक्सपर्टीज नहीं है, बट इट्स नॉट अ वीकनेस। अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, शेयर कर देना वीडियो।
वीडियो लाइक एंड कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और एक लास्ट चीज बताता हूँ, एक और होती है बहुत लोग की, सर आई एम वीक इन एल्जेब्रा, ये स्पेसिफिकली फॉर एल्जेब्रा है। अगर एल्जेब्रा है आपकी वीक, माय डियर फ्रेंड्स, यू डू नॉट नो हाउ टू यूज जनरलाइजेशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस। जुगाड़ यूज करना नहीं आता है आपको। अगर जुगाड़ यूज करना नहीं आता है, वन ऑफ द वेज इज टू चेक आउट वीडियोस ऑफ CL ऑल्सो, बिकॉज CL में GP सर does a lot of जुगाड़, especially in algebra, and you would want to see all of that. My dear friends, this video was an attempt to be the only video you need to watch on QA, your strategy for QA if you're weak in QA or whatever you're planning to do in QA. I am sure that you'll do really well. Apply this in the next mock, and also please go down in the comments and let me know what did you feel about it. Let me know मजा आया, अच्छा लगा, कैसा लगा, या फिर लगा कि सर ऐसे थोड़ी होते, कुछ भी बोल गए यार, ये क्या बात हुई। जो भी लगे बताना। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।